Hello everyone, myself Dr. Anurag Verma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, IET, Lucknow. Welcome back to the Energy Conservation and Auditing. In Energy and Conservation and Auditing, in previous lecture we have discussed basic overview of this subject. In this subject we have discussed that what we will study in unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5 and few books I have referred in previous lecture. So, from this lecture we will continue to the unit 1. In unit 1 we first discuss about classification of energy. So, let move to the unit 1. In unit 1 what is basically we will discuss about energy scenario. In energy scenario we first have to discuss about the classification of energy. After classification of energy we will see the Indian energy scenario. What is the Indian energy scenario in terms of energy with respect to other countries. Then after that in seeing the Indian energy scenario we will move to the sectorial energy consumption. In sectorial energy consumption we will see how much energy is consumed by the domestic or industrial sector and by other sectors, banking sectors, transportation sectors, etc. Then after completing this part sectorial energy consumption we will move to the energy needs of growing economy. So, we will also see that in growing economy what is the role of energy needs. So, this is the best topic of this unit, that is in economy what is the role of energy. So, we will also see the energy role of energy in growing economy, in growing Indian economy, in growing Indian economy, or energy intensity. This term we will discuss in detail, that what is energy intensity. Then long term energy scenario. In long term we will see what is the energy scenario, how much energy is required and how much energy is generated or how much energy will be required in future. Energy pricing, energy security, energy conservation and its importance, energy strategy for the future. In second part of unit 1, that is Energy Conservation Act 2001 and related policies. कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बना था 2001 में, उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी हम वो पॉलिसीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, क्या नोटिफिकेशंस थे इस एक्ट के वो देखेंगे, क्या स्कीम होती हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वो भी देखेंगे. अब इस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में इन क्या है, कई सारे आपको लाइटिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, लाइटिंग कंफर्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. क्या रेटिंग्स अवेलेबल हैं वो रेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, फिर डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो उस पर नेशनल एक्शन प्लान क्या है वो प्लान के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे. देन आफ्टर दैट ECBC कोड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. अगर कोई बिल्डिंग बनने जा रही है या कंस्ट्रक्ट होने जा रही है तो गवर्नमेंट ने क्या है कि कुछ कोड बना रखे हैं, जिन कोड का नाम क्या है बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड. तो इन कोड को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इन कोड को अगर अप्लाई करूँगा वाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, इन दैट केस एनर्जी विल बी कंजर्व. कहने का मतलब ये है कि अगर इन ECBC कोड को आप यूज़ करके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एनर्जी जो कंजम्पशन है वो एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, जिससे आपकी क्या है कि एनर्जी सेविंग्स इंक्रीज होंगी. बिल्डिंग की जो एनर्जी एफिशिएंसी है, बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. इस वजह से इस कोड का क्या नाम है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ECBC. तो अब चलते हैं इसको डिटेल में, एनर्जी सिनेरियो को देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को देखते हैं. इस एनर्जी सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, तो
एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? सिंपल सा आंसर ये है कि अपने फ्यूचर के लिए हमें एनर्जी को क्या है, बचा के रखना है। तो ये तो मेन ज़रूरत है। दूसरा ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन जो क्या है बेसिकली मेजर्स हेल्प्स इन सेविंग एनर्जी एंड कटिंग कॉस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। ठीक है, घरों में क्या है कि आप लोग कोशिश यही करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लाइट्स ऑफ करके रखो, जितनी भी चीज़ें अगर यूज़ में नहीं है उनको ऑफ करके रखो। ऐसा क्यों? इससे दो फायदे हैं। एक तो क्या है आप एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो, दूसरा आप क्या कर रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आ रहा है उसको रेड्यूस कर रहे हो। तो ये क्या है कि मेन नीड है एनर्जी कंजर्वेशन की। तो डिटेल में अगर हम लोग देखेंगे, फॉर एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन आवर एनवायरमेंटल सफर्स अ लॉस इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन एंड रेड्यूसिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्या है कि जो भी यूनिट जनरेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं जनरेट हो रही होगी। जिधर भी वो जनरेट हो रही होगी वहाँ पे क्या है कि कोई भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से उस एनर्जी को जनरेट किया जा रहा होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है या कोल पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर वाले में क्या है कि आप एनर्जी अगर जनरेट हो रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी कंज्यूम भी तो कहीं ना कहीं हो रही होगी। उससे क्या है कि जो पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, ठीक है, और जो आपका सोर्स है, सोर्स इन द सेंस न्यूक्लियर के लिए अगर बात करें यूरेनियम, तो वो भी क्या हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा। तो उस सब के लिए क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन की हमें ज़रूरत है। मोर जनरेटिंग कैपेसिटी डिमांड सेविंग अ यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट ओनली सेव मनी बट ऑल्सो सेव एनवायरमेंटल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट को सेव करता है, हमारी जो यूनिट ऑफ एनर्जी है उसको सेव होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल रेड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अब ये कर कैसे सकते हैं कि एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाए? तो सबसे पहले ये है कि आप क्या करो, CFL का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा CFL का यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा CFL का यूज़ करोगे तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, रेड्यूस होगा। पहले क्या था, इनकैंडेसेंट लाइटिंग यूज़ करते थे जिनकी क्या थी कैपेसिटी या रेटिंग उनकी ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू CFL या तो फिर LEDs के कंपैरिजन में। कॉमन एरियाज़ में हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लोरोसेंट लाइटिंग इन प्लेस ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट यूज़ की जाए। फिर एनर्जी सेविंग फ्लोरोसेंट लैम्प्स विथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, जो आप लोग हाईवेज वगैरह पे देखते हो, पहले क्या था कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट कॉमन एरियाज़ में लगे होते थे या हाईवेज पे लगे होते थे, जिनको हम बेसिकली क्या सोडियम लैंप भी बोलते थे। वहाँ पे क्या है कि LEDs या CFL का यूज़ करके भी एनर्जी को सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंस्टॉल लाइटिंग कंट्रोल इन कॉमन एरियाज़। अब इन लाइटिंग कंट्रोल्स को इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि आप ऑटोमेशन इंस्टॉल फोटो कंट्रोल्स फॉर एक्सटीरियर लाइटिंग। ठीक है, कि जैसे जैसे क्या है कि सन की जो रोशनी है बढ़ती जाएगी, इन फोटो कंट्रोल की हेल्प से क्या है कि जो आपकी CFL लगी हुई है यहाँ जहाँ पे कोई लाइटिंग यूज़ की हुई है तो उसका क्या है कनेक्शन इससे फोटो कंट्रोल से होगा और उसकी जो लाइट है वो डिम होती चली जाएगी। एडजस्ट लाइटिंग लेवल्स विद डिमर टू मैच नीड्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे बाई यूजिंग डे लाइटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि लाइटिंग लेवल्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं डिमर की हेल्प से। नेचुरल लाइट यूज़ करें जहाँ भी पॉसिबल हो। एंश्योर विंडोज आर क्लीन एंड एनकरेज स्टाफ टू ओपन ब्लाइंड्स बिफोर थिंकिंग ऑफ स्विचिंग ऑन लाइट्स। कई बार क्या होता है कि घरों में पर्दे पड़े होते हैं या ऑफिस में पर्दे पड़े होते हैं, तो हम लोग क्या है पर्दे ना नए खोलने की बजाय क्या कर देते हैं, सीधे जाके लाइट को टर्न ऑन कर देते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि क्यों ना जो कर्टेंस हैं उनको ओपन किया जाए और जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही उससे उस एनर्जी को सेव किया जाए। टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल लाइट साइंस बिलबोर्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग, स्केल बैक टू हाफ लाइटिंग और रेड्यूस लाइट्स ऑन अ डिमर वेयर पॉसिबल। तो इस तरीके से क्या है कि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स में अगर हम बात करें तो पहला क्या है, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन लीविंग द ऑफिस बिल्डिंग। मास्टर स्विच लगा दें। मास्टर स्विच लगाने से क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार सीढ़ियों पे, ठीक है, सीढ़ियों पे क्या है कि ऑल टाइम तो हम लोग लाइट्स को जला के नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्विच इधर लगी होती है, एक स्विच यहाँ पे लगी होती है। यहाँ से जैसे ही गए इसको आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, उजाला हो गया। यहाँ पहुँचे आपने क्या कर दिया, इसको प्रेस कर दी ऑफ। तो
तो इस वजह से क्या है कि आपने यूज़ भी कर लिया और एनर्जी को सेव भी कर लिया। तो इंस्टॉलेशन ऑफ मास्टर स्विच आउटसाइड अ रूम कैन मेक इट इजी फॉर अ पर्सन टू स्विच ऑफ ऑल द अप्लायंसेस ऑफ अ रूम इन केस ऑफ समवन फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ व्हाइल लीविंग द रूम। कई बार क्या है कि घरों में जब हम ताला लगा के निकलते हैं तो अंदर की लाइट पंखे खुले छूट जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप बाहर क्या करो, एक मास्टर स्विच लगा दो। मास्टर स्विच लगाने से क्या है कि अगर आप भूल भी जाते हो इन दैट केस वो यूज़ में आ जाए। This can help improving energy efficiency. Corridors and toilets have large potential of saving energy by use of automation tools. ठीक है, क्योंकि वही क्या है कंटिन्यूस यूज़ में रहते हैं, तो कंटिन्यूस यूज़ में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लाइट्स भी आप कंटिन्यूस यूज़ में रहो। तो ऑटोमेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको कॉरिडोर्स और या टॉयलेट्स की जो भी सेविंग्स हैं, एनर्जी सेविंग्स, उनको हम सेव कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। नेक्स्ट है मोशन सेंसर्स। मोशन सेंसर्स का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली स्विच ऑन कर सकते हैं लाइट को जहाँ भी कोई मूवमेंट हो, या तो फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं जहाँ भी लाइट या कोई मूवमेंट ना हो, वेयर देर इज अ नो मूवमेंट। दिस कैन ग्रेटली reduce द टोटल लोड इन कॉरिडोर्स एंड टॉयलेट्स। नेक्स्ट है विंडो एसी शुड बी रिप्लेस्ड विथ स्प्लिट एसी। एक ये भी कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी मेजर्स कंजर्वेशन मेजर्स में आता है कि आप क्या करो, विंडो एसी जितनी भी लगी हो उनको रिप्लेस कर दो किससे, स्प्लिट एसी से। ऐसा करने से क्या इन प्रॉपर वेंटिलेशन टू फैन फॉर हीट एक्सचेंज के लिए जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर मिलेगी। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी ऑडिट। अब अगर हम एनर्जी ऑडिट नहीं करेंगे या एनर्जी की कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कितनी नीड है, कितनी सेविंग्स करनी है, कैसे पॉलिसी को डिज़ाइन करना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिज़ाइन करना है। तो ये जो है एनर्जी ऑडिट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हमारे एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिटिंग में। तो एनर्जी ऑडिट नीड्स टू बी डन टू आइडेंटिफाई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप एनर्जी ऑडिट करके ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे एनर्जी को सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या बेसिकली घरों में क्या है कि एक बजट तैयार करते हैं। इन जनरल टर्म में बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि बजट तैयार करते हैं। बजट किस लिए तैयार करते हैं, बजट इसीलिए तैयार किया जाता है कि जो भी सैलरी आएगी कितनी सेविंग्स हम कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे फालतू के खर्चे हैं। तो सेम यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हुए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एनर्जी ऑडिट से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी को सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी ऑडिट नीड्स टू बी डन टू आइडेंटिफाई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन अ फैसिलिटी और एरियाज विथ एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी कंपेयर्ड विथ सेटअप स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के रेस्पेक्ट में हम ये क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे एनर्जी सेव करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है। एनर्जी ऑडिट जो है क्या एक इफेक्टिव टूल है जिससे एनर्जी को मैनेज भी किया जा सकता है। ठीक, एनर्जी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑडिट की, तो एनर्जी ऑडिट की डेफिनेशन पे जाऊं तो ये एक प्रोसेस है या एक मेथडोलॉजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पावर कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू different areas and in various slots of time, total connected load, maximum demand, power factor, load factor, and most importantly it proposes economic measures to save energy with detailed comparison of cost of energy saving and investment required in terms of payback period। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे एनर्जी ऑडिट में कि कितना लोड कनेक्टेड है। ठीक है, क्या मैक्सिमम डिमांड रहने वाली है। आप लोगों ने मोस्टली क्या है कि इस SLDC का नाम सुना होगा, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। इस SLDC में बेसिकली क्या होता है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में यही तो देखा जाता है कि टोटल कितना कनेक्टेड लोड है। ठीक है, कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे मेंटेनेंस करनी है, कहाँ पे मेंटेनेंस की या तो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो टोटल कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड, पावर फैक्टर, load factor, and most importantly it proposes economic measures to save energy with detailed comparison of cost of energy saving and investment required in terms of payback period। कहने का मतलब ये है कि एक मैं सोलर का एग्जांपल लेता हूँ कि सोलर प्लांट आपने अपने घर में लगाया, एक छोटा सा सोलर पावर प्लांट आपने घर में लगाया, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सोलर पावर प्लांट को परचेस करने के लिए सोचोगे, तो उस प्लांट को परचेस करने के लिए आपको क्या है, पैनल्स चाहिए, पैनल्स के बाद आपको क्या है, कंट्रोलर चाहिए, तो उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप
सबसे पहले अपनी जो भी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आप ये देखोगे कि जनरली जो हमें गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है उसकी कॉस्ट से, गवर्नमेंट से जो भी सप्लाई आ रही है एसी मीन्स, उससे कंपेयर करोगे कि मैं अगर अपने पैनल्स लगा लेता हूँ, सोलर पैनल्स लगा लेता हूँ, तो वो कितनी हमें एनर्जी सेव होगी या कितना पैसा सेव होगा। तो वो किस टर्म में आ जाता है, पे बैक पीरियड में आ जाता है कि मतलब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की, टोटल सेविंग्स वहाँ से कितनी मिली लॉन्ग टर्म। अगर मैं लॉन्ग टर्म में जाता हूँ, देन एन एनर्जी ऑडिट इज अ स्टडी ऑफ अ प्लांट और facility to determine how and where energy is used and to identify methods for energy savings। तो इस तरीके से क्या है, एनर्जी ऑडिट से हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एनर्जी ऑडिट के? ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल एनर्जी यूज। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन दैट विल रिड्यूस द एनर्जी यूज एंड, या तो फिर कॉस्ट की अगर बात करें। फिर नेक्स्ट है टू परफॉर्म एन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल मॉडिफिकेशंस। लास्ट, preparation of rank ordered list of appropriate modifications, preparation of an audit report to document the analysis process। मतलब जो भी आपने ऑडिट की है, जो भी आपने कैलकुलेशंस की हैं, उसकी एक क्या है, प्रॉपर रिपोर्ट फॉर्मेट होता है। उस रिपोर्ट फॉर्मेट में हमें स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके उसको एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे क्या हम एनर्जी एनालिसिस करते हैं या तो ऑडिट करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें या मॉडिफिकेशंस की देख सकें कि कहाँ पे हमें मॉडिफाई की ज़रूरत है या कहाँ पे हमें सेविंग्स की ज़रूरत है या कहाँ पे मतलब कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिल्डिंग को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या है कि हमें एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, जो कि एक इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में। तो एनर्जी में क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले एनर्जी को देखते हुए चलते हैं कि एनर्जी इज़ वन ऑफ द मेजर इनपुट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। सिर्फ इंडिया की बात नहीं की जा रही है, सारी कंट्रीज़ की बात की जा रही है कि जो एनर्जी है वन ऑफ द मेजर इनपुट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हर कहीं भी डेवलपमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो हर जगह क्या है कि एनर्जी का कंजम्पशन होना ही है। अगर एनर्जी कंजम्पशन नहीं होगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो कि आपकी क्लासीफाई हैं इस तरीके से। पहली क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरीके से अपनी जितनी भी एनर्जी अवेलेबल हैं या एग्जिस्टिंग इन नेचर हैं उनको क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में, कमर्शियल नॉन कमर्शियल में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक, अब प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें इस तरीके से हम क्या है कि देख सकते हैं, यहाँ पे सोर्स है, ठीक, सोर्स के बाद क्या है, एक्सट्रैक्शन है, उसकी प्रोसेसिंग है, फिर प्राइमरी एनर्जी मिल रही है, उस प्राइमरी एनर्जी से फर्दर आपको क्या है, सेकेंडरी एनर्जी मिल रही है। तो सोर्स यहाँ पे क्या है, एक सोर्स क्या है, कोल है, ठीक है। कोल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया, ओपन या तो डीप माइन से, प्रोसेस करने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद आपको क्या मिला, कोल, प्यूरिफिकेशन के बाद कोक, फिर वहीं से क्या है, उसी को क्या है, प्रिपरेशन करने के बाद आपने किसको दिया, पावर स्टेशन को दिया। तो ये अब ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, प्राइमरी एनर्जी का पार्ट है, ठीक है। तो ये कोल हो गया आपका, ठीक है। कोल की अगर बात करें फिर एलपीजी, पेट्रोल, डीजल फ्यूल, ऑयल्स, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ये प्राइमरी एनर्जीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली किससे मिल जाती हैं, नेचर से मिल जाती हैं आफ्टर सम एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग। अब इन्हीं प्राइमरी एनर्जी का यूज़ करके हम सेकेंडरी एनर्जी भी जनरेट करते हैं। जैसे कोल का यूज़ किया, स्टीम जनरेट कर ली, ठीक है। या तो फिर थर्मल पावर प्लांट आप लोगों ने देखोगे, थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, कोल को यूज़ करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, फिर वाटर को हीट करने के बाद जो स्टीम जनरेट होती है उस स्टीम को क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी टरबाइंस लगी होती हैं उनकी ब्लेड पे इस तरीके से क्या है वो स्टीम पास की जाती, फिर वो जो ब्लेड क्या है रोटेट होना शुरू होती है। जो रोटेशन है वो क्या है, बेसिकली क्या है, वो वहाँ पे डायनामो है जिससे वो क्या है, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके से ये क्या है, सेकेंडरी एनर्जी आपने जनरेट की किससे, प्राइमरी एनर्जी से। और प्राइमरी एनर्जी आपको कहाँ से मिली थी, नेचर से मिली थी, जो कि आपने उसको पहले एक्सट्रैक्ट किया, प्रोसेस किया, आपको क्या मिल गया, प्राइमरी एनर्जी मिल गई।
पावर स्टेशन के लिए क्या है, कोल भी जा रहा है, हाइड्रो भी जा रहा है, न्यूक्लियर भी जा रहा है, नेचुरल गैस भी जा रही है, पेट्रोलियम भी जा रहा है। तो ये क्या है, इन सारों से मिलके क्या है, हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही। तो इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही वो सेकेंडरी आएगा, बाकी क्या है जिससे हम जनरेट कर रहे हैं किसी भी सोर्स का यूज करके, वो क्या है आपका प्राइमरी एनर्जी है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी का। अब चलते हैं कमर्शियल एनर्जी। आपके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था क्या था, कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल, कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी। अगर कमर्शियल एनर्जी की बात करूं मैं, तो एनर्जी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डेफिनेट प्राइस आर नोन एज कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, कुछ एनर्जी सोर्सेस ऐसे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको क्या है, एक डेफिनेट प्राइस पे खरीदा जा सकता है। ठीक है, बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो आप लोग पेट्रोल, डीजल इस तरीके से परचेस करते हो, वो सब क्या है, कमर्शलाइज्ड हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, इवन कि अगर आपको कोल को यूज़ करना है तो कोल परचेस करना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। देन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपके आ गए, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, कैरोसिन आ गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कमर्शियल एनर्जी हैं। तो कमर्शियल एनर्जी बेसिकली का फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल डेवलपमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इनका यूज़ करके हम क्या बेसिकली कर रहे हैं, एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में इनका क्या है, एक मेन रोल है। इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कमर्शलाइज्ड फ्यूल्स आर predominant source not only for economic production but also for many household tasks of general populations। ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये हाउसिंग में आपने जनरली देखा होगा इनका यूज़ होता है। सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके क्या है कि एक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी, एक हाउस होल्ड टास्क के लिए यूज़ होते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी कमर्शियल एनर्जी की। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी की अगर बात करें तो ये आपकी क्या है, वो तो कमर्शियल वाली क्या थी, वो तो इजीली मार्केट में अवेलेबल थी। कैसे अवेलेबल थी, आप क्या है, प्राइस तो जो भी प्राइस है और उनको परचेस करके यूज़ कर लो, वो बात क्या थी, कमर्शियल की थी। नॉन कमर्शियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन कमर्शियल में क्या है, दे आर नॉट अवेलेबल इन द कमर्शियल मार्केट फॉर अ प्राइस आर क्लासिफाइड एज नॉन कमर्शियल एनर्जी। Non-commercial energy sources include fuels such as firewood, cattle dung, agriculture wastes which are traditionally gathered and not bought at a price, used especially in rural households. These are also called traditional fuels। ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, अब तो खैर क्या है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट भी बिकना शुरू हो गया है। ठीक है, काउ डंग ऑल्सो अवेलेबल, बट ये क्या है कि कमर्शलाइज्ड नहीं है। मतलब मिलने को तो मिल जाएगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी मिल जाएगा आपको, काउ डंग वगैरह इस तरीके से फ्यूल्स मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए, बट दीज आर नॉट कमर्शलाइज, इनकी कोई प्राइस फिक्स नहीं है। नॉन कमर्शियल एनर्जी इज ऑफन इग्नोर्ड इन एनर्जी अकाउंटिंग। तो इसको क्या है जब भी एनर्जी अकाउंटिंग की बात करें, ऑडिट की बात करते हैं, तो इस एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं। जो बताया गया अभी आपको कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, फायरवुड हो गए, तो इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल फायरवुड हो गया, एग्रो वेस्ट इन रूरल एरियाज हो गया, सोलर एनर्जी फॉर वाटर हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया फॉर ड्राइंग ग्रेन, फेस, फ्रूट्स, एनिमल पावर फॉर ट्रांसपोर्ट, थ्रेसिंग, लिफ्टिंग, वाटर फॉर इरीगेशन, क्रशिंग शुगर केन, विंड एनर्जी फॉर लिफ्टिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इन सब को क्या है कि ये सब एग्जाम्पल क्या है, नॉन कमर्शियल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जनरेटेड कंटिन्यूसली प्रैक्टिकली विदाउट डीके ऑफ सोर्स। मतलब बार बार इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, रीन्यू, मतलब वापस से क्या है उसको हम नया कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल के अगर आप एग्जाम्पल्स पे जाएंगे तो रिन्यूएबल्स के एग्जाम्पल में क्या है, बायोमास, ठीक है, रिन्यू। सोलर भी क्या है, ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला। मतलब क्या है, विदाउट डीके ऑफ सोर्स या विदाउट एक्सटेंट ऑफ द सोर्स हम लोग क्या है इनको
जनरेट कर सकते हैं इनसे एनर्जी। बायोमास हो गया, सोलर हो गया, जियोथर्मल हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो किसके हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। वहीं अगर मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो नॉन रिन्यूएबल में आपका क्या आ जाता है? नॉन रिन्यूएबल में आपका आ जाता है नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, ऑयल, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा आएगा क्या है कि कभी ना कभी ये एक्सटिंक्ट होंगे। न्यूक्लियर भी ख़त्म हो सकता है, ऑयल भी ख़त्म हो सकता है, इसीलिए अपनी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं, जिससे कि क्या है कि अपना न्यूक्लियर, ऑयल, नेचुरल गैस या कोल वगैरह ये बचे रहें। नेक्स्ट, अब ये सोर्स हैं विंड पावर, मतलब जो एनर्जी सिनेरियो की मैं बात कर रहा था, ठीक है, एनर्जी सिनेरियो कि एनर्जी का क्या सिनेरियो है, तो हमने देखा विंड पावर, सोलर पावर, बायोमास पावर, बेस्ड टू पावर, मतलब बेस से हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल हाइड्रो पावर। तो जो इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी यहाँ पे लिख रखी है वो किस में है? मेगावाट में है। तो जो डेटा था 31 मार्च 2018 का वो किस तरीके से? 34,046 मेगावाट किसका था? विंड पावर का था। वहीं जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31 अगस्त 2021 की यहाँ पे अभी मिसिंग है, क्योंकि ये डेटा अभी मेरे को मिल नहीं पाया। नेक्स्ट हम चलते हैं टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट क्या है? 2022 का जो टारगेट था ये तो 2018 का था, 21 का अवेलेबल नहीं था। इस वजह से क्या है, जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ पे लिखा गया है कि विंड पावर का टारगेट क्या रहेगा? 60,000 किस 2022 के लिए, जो भी करंट ईयर है। सोलर पावर क्या क्या है कि जो इंस्टॉल्ड मेगावाट कैपेसिटी वो 31 मार्च 2018 के लिए कितनी है? 21,651। टारगेट कितना है? टारगेट है 1 लाख। ठीक है, वेस्ट टू पावर 138 मेगावाट, बायोमास पावर 8,701 मेगावाट, और टारगेट क्या है? 10,000। किसके लिए? 10,000 आपका आ जाएगा बायोमास पावर के लिए। सिमिलरली स्मॉल हाइड्रो पावर के लिए कितना है? 5,000 मेगावाट। तो टोटल कितना है? 69,022 जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ मेगावाट, और टारगेट कितना है? 1,75,000। और 2030 तक जो टारगेट है टोटल इन सारे सोर्सेज से मिला के वो कितना है? 4,50,000 मेगावाट। ये टारगेट कब का है? ये 2030 का टारगेट है। ठीक है, इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर विद 38%, मीन्स 136 गीगावाट आउट ऑफ 373 गीगावाट ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी इन 2020 फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इंडिया की जो रैंकिंग है, अगर मैं एनर्जी सिनेरियो के टर्म्स में बात करूं तो जो इंडिया की रैंकिंग है वो क्या है? थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है वो आपका विंड हो गया, सोलर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे एनर्जी का सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो फर्दर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।